Hello students, today we will read question answer and exercise of the chapter The Sermon at Banaras. Question first है when her son dies, Kisa Gotmi goes from house to house. What does she ask for? Does she get it and why not? तो आंसर है आफ्टर द डेथ ऑफ हर ओनली सन किसा गौतमी वॉज ओवरकम विद ग्रीफ सी कैरिड द डेड बॉडी ऑफ हर सन इन हर आर्म्स एंड वेंट फ्रॉम डोर टू डोर आस्किंग फॉर मेडिसिन टू क्योर हर चाइल्ड बट नोबडी कुड प्रोवाइड एनी मेडिसिन फॉर देर इज नो such medicine available which can bring a dead person back to life. डेथ के बाद किसा गौतमी है वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और उसने अपनी बेटी की डेड बॉडी को लेकर एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे मेडिसिन के लिए वो घूमती, लेकिन उसकी कोई भी उसको मेडिसिन नहीं दे पाया क्योंकि डेथ के बाद कोई भी पर्सन है वो वापस लाइफ में नहीं आ सकता. क्वेश्चन नंबर 2 है किसा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर सी स्पीक्स विद द बुद्धा. What does she ask for the second time around? Does she get it and why not? आंसर है गौतम बुद्धा asked Kisa to bring a handful of mustard seeds from a house where death had never knocked at the door. Kisa Gautami went from door to door but couldn't find a single house where death had not taken a beloved away. She could not get it as death is inevitable and anyone who is born is bound to die one day. किसा गौतमी को अपने बेटे की लाइफ बचाने के लिए मस्टर्ड सीड्स लेने थे और ऐसे दरवाजे से लेने थे जिसमें कभी किसी की डेथ नहीं हुई, लेकिन किसा गौतमी को ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जिसमें उसके किसी भी डियर की डेथ नहीं हुई हो. क्वेश्चन थर्ड है व्हाट डज किसा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइम that she failed to understand the first time? Was that what the Buddha wanted her to understand? Answer is after falling to procure handle of the mustard seeds from a house where death had never knocked at the door, she sat down by the roadside feeling helpless. She sat down by the roadside feeling helpless. Line repeat हो रही है. She saw the lights of city that flickering and were extinguished. At last it was darkness everywhere. She realized that death was common to all and she was being selfish in her grief. Yes, this is what Buddha wanted her to understand, that everyone who is born has to die one day. किसा गौतमी है वो निराश होकर जब बैठ जाती है रोड साइड तो वो एक लैम्प को जलते हुए देखती है और जल रहा है और बुझ रहा है और लास्ट में क्या होता है वो एकदम से बुझ जाता है और पूरी तरह डार्कनेस फैल जाती है. तो उसको समझ में आता है कि लाइफ है वो भी इसी तरह से जो जिसका बोर्न हुआ है उसकी डेथ भी निश्चित है. उसके बाद यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा है लेकिन आपको आपकी टेक्स्ट बुक से देख के क्वेश्चन कंप्लीट करना है. व्हाई डू यू थिंक किसा गौतमी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकेंड टाइम? इन व्हाट वे डिड द बुद्धा चेंज हिज अंडरस्टैंडिंग? तो आंसर है ईयरली सी कुड सी ओनली हर ग्रीफ व्हेन सी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर. द सेकेंड टाइम सी अंडरस्टूड दैट एवरीवन कम डीलिंग with the loss of a beloved ones. Gautam Buddha helped her to understand all this. He told her to bring a handful of mustard seeds from a house where death had never knocked at the door. This way she got aware that death is common. Death is common to all human beings. Question last है fifth. How do you usually understand the idea of selfishness? Do you agree with the Kisa Gautami she being selfish in her grief? Answer: a selfish person is one who only thinks about himself or herself, and to some extent Kisa Gautami was being selfish because we are human and it is natural for us to die. We do not easily accept the death of our loved ones. Same has happened with Kisa Gautami as it was her only child. She did not want him to die and finally went to Buddha to ask for help. कि एक सेल्फिश आदमी होता है वो हमेशा अपने बारे में ही सोचता है जबकि फाइनली उसको भी डेथ के पास जाना ही होता है. Now we will discuss exercise of the chapter. Now we will discuss rectify the error. तो फर्स्ट है at 12 he sent away for schooling. तो इसमें एरर सेंट इज एरर एंड वॉज सेंट इज करेक्शन क्योंकि ये पास्ट टेंस में है.
इन द हिंदू sketch scriptures but is error and is correction. Years later he returned home to marry. Later देखिए यहाँ पे स्पेलिंग का मिस्टेक है, LATTER जबकि LATER होता है लेटर बाद में. A princess they have a son and lived for. Have is error and had is correction, क्योंकि यहाँ पे फिर past tense दिया गया है, had है वो past के लिए यूज होता है. 10 years as befitted royal. रॉयल इज एरर एंड रॉयलिटी इज करेक्शन. यहाँ पे फिर से दिया है नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीफ, तो यहाँ पे एरर और करेक्शन दिए गए हैं. बाद यहाँ पे टर्न द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. कीशा गौतमी met a man who replied to her request, I cannot give the medicine for the child, but I know a physician who can. And the girl said, pray tell me, sir, who is it? And the man replied, go to Sakyamuni the Buddha. Kisa Gotmi repaired to the Buddha and cried, Lord the master, give me the medicine that will cure my boy. तो आंसर होगा, इसको देखिए हमें इनडायरेक्ट स्पीच में करना है, ये डायरेक्ट दिया है और इनडायरेक्ट करना है. तो आएगा कीसा गौतमी मीट ए मैन हु रिप्लाई टू हर रिक्वेस्ट दैट ही कुड नॉट गिव हर मेडिसिन फॉर हर चाइल्ड एंड added that he knew a physician who could help her. Full stop. And the girl requested to tell her who he was. And the man asked her to go to Sakyamuni, the Buddha. Full stop. Kisa Gotmi repaired to the Buddha and cried, addressing him, Lord and Master, to give her to medicine that would cure her boy. अब यहाँ पे सेकंड है वो दिया गया है, वो नीचे आंसर है. थर्ड है द पीपल पीटेड हर एंड सेड हर इज मस्टर्ड सीड्स टेक इट बट व्हेन शी आस्क्ड डिड ए सन और डॉटर ए फादर और मदर डाई इन योर फैमिली दे आंसर्ड हर alas the living are few but the dead are many, don't remind us of your deepest grief. आंसर है करते द पीपल पीटेड हर एंड ऑफर्ड हर मस्टर्ड सीड बट व्हेन शी आस्क्ड इफ ए सन और डॉटर ए फादर और मदर हैड डाइड इन हर फैमिली दे आंसर्ड हर सोरोफुली दैट द लिविंग वर फ्यू बट द डेड वर मैनी देन दे आस्क्ड हर नोट ए रिमाइंड दैम ऑफ देयर डीपेस्ट ग्रीफ. अब री राइट डायरेक्ट सेंटेंस करते हैं. तो फर्स्ट है गौतम बुद्धा वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक इनलाइटमेंट. तो इसमें क्या करना है, यूज विद ए व्यू टू. तो उसका आंसर होगा गौतम बुद्धा वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड विद ए व्यू टू सीकिंग इनलाइटमेंट. सेकेंड है द सरमन हैड बीन प्रिजर्व्ड. तो चेंज द वॉइस. तो आंसर होगा दे हैव प्रिजर्व्ड द सरमन. उसके बाद थर्ड है एंड देर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट. तो इसका एफर्मेटिव करना है. तो इसमें आएगा एवरी हाउस देर हैड सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट. फोर्थ है हाउ शेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ. तो असर्टिव करना है. तो आएगा आई एम रियली ग्रेटली सेल्फिश इन माई ग्रीफ. फुल स्टॉप. फिफ्थ है दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन नॉट अवॉइड डाइंग. तो इसको क्या करना है, टर्न इनटू ए क्वेश्चन. क्वेश्चन में टर्न करना है फिफ्थ को. तो इसमें आएगा कैन दोज दैट हैव बीन बोर्न अवॉइड डाइंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. सिक्स है बोथ यंग एंड अडल्ट फॉल इनटू पावर ऑफ डेथ यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो. तो सिक्स्थ में आएगा नॉट ओनली यंग बट ऑल्सो अडल्ट फॉल इनटू पावर ऑफ डेथ. लास्ट है mortals when born are always in danger of death. तो टर्न इनटू सिंपल. तो इसका सेवंथ का आंसर होगा mortals at the time of their birth are always in danger of death. यहाँ पे री राइट एज डायरेक्टर के आंसर दिए गए हैं और हमारा लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है. ऑल एक्सरसाइज राइट इन योर नोटबुक. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.